Hello dear students, I am Garima Miss. Welcome back to my English lecture. After completing 1.6 last chapter of 11th standard prose section, that is Tiger Hills, written by General Ved Prakash Malik, let's move on to the drama section. Today we are going to take drama chapter. Yes student, today we will see one drama of 11th standard, that is the last chapter of this syllabus, that is 4.3 B, an enemy of the people. An enemy of the people, if you would see, is the chapter, is the drama written by Henrik Johan Ibsen. Henrik Johan Ibsen, if you would see, is a Norwegian playwright. It means he is basically from Norway, and from Norway he represents the life of that place. However, this man is very famous in writing the dramas, but his writing is basically based on the reality of life. इनकी राइटिंग अगर आप देखोगे तो सच्चाई पे आधारित रहती है, और हेनरिक जोहान इब्सन सोसाइटल प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं. ही इज़ फोकसिंग मोर ऑन द सोसाइटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स. You can see student, here is the main character, and the name of the main character or hero of this play is Dr. Stockman. Dr. Stockman, if you would see, one day when he had discovered that there was contamination, मतलब गंदगी है ड्रेनेज के पानी में, Dr. Stockman thought that I will voice out. This is the time that I will voice, I will say, I will stand for truth. And of course हम सबको बोलने का अधिकार है. Right to speech we all had got in constitution. सेम वे नॉर्वे में भी अब अगर आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. बट व्हेन द डॉक्टर स्टॉकमैन, हु इज़ द हीरो ऑफ दिस प्ले, he decided to say the truth, nobody likes, and the people, the bureaucrats, the high officers consider him as an enemy of the people. लोगों के पास जाकर लोगों को करप्शन जो हो रहा है, ट्रुथ जो सच्चाई है वो बता रहे हैं कि कितना करप्शन हो रहा है पानी में, ये चीज़ लोगों तक पहुंचाते पहुंचाते लास्ट में डॉक्टर स्टॉकमैन अंडरस्टूड दैट नोबडी वांट्स द रियलिटी, एंड डॉक्टर स्टॉकमैन को एन एनिमी ऑफ द पीपल, ब्यूरोक्रेट्स जो हाई ऑफिसर्स थे वो लोगों ने बता दिया. मतलब जो लड़ाई लड़ रहा था डॉक्टर स्टॉकमैन इज़, इफ़ यू वुड सी, एट द एंड ही गॉट द टैग ऑफ एन एनिमी ऑफ द पीपल. एक्चुअली ही वॉज द फ्रेंड ऑफ द पीपल. लोगों की भलाई के लिए वो स्टैंड हुआ था, बट नो बडी अंडरस्टूड. सो इब्सन, इफ यू वुड सी, एक्चुअली had faced this problem in his life. So he thought that I should write one play, and if you would see here, Dr. Stockman served as a spokesperson of Ibsen. आपके कैरेक्टर को आप देख रहे हो, वो एक्चुअली में रियल लाइफ में इब्सन ने फेस किया है इन हिज लाइफ. The picture of truth, the picture of life, the picture of you can see the thing that he should be strongly standing for the truth. ये सारा चीज़ इब्सन ने अपने लाइफ में फेस किया, तो उन्होंने एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया है डॉक्टर स्टॉकमैन, एंड थ्रू दिस द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड. एंड थ्रू दिस डॉक्टर यू कैन सी स्टॉकमैन, डॉक्टर स्टॉकमैन के जरिए Ibsen tries to make us understand the hypocrisy of this society. हमारे सोसाइटी में जो हाइपोक्रेसी है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको रिप्रेजेंट किया है. डॉक्टर स्टॉकमैन एक्चुअली वन डे हैड फाउंड द कंटामिनेटेड वाटर, एंड ही थॉट दैट ही वुड नॉट बी साइलेंट. ही रिफ्यूजेस टू बी साइलेंट, एंड thus the people declared him as enemy of the people. So by fighting for getting the justice, Dr. Stockman at the end realizes
that there is no one who is going to help you. It is only you to be the strongest person and can able to help. तुम ही खुद को हेल्प कर सकते हो, कोई और दूसरा तुमको हेल्प नहीं कर सकता है. और ये प्ले आप देखोगे, ये स्मॉल टाउन नॉर्वे पे रिप्रेजेंट किया है. नॉर्वे का एक छोटा सा टाउन जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है वाटर का, उसके ऊपर रिप्रेजेंट किया है. और कितने प्रॉपरली यू कैन सी डॉक्टर्स कैरेक्टर वॉज बीन टेकन अप बाय हेनरिक जोहान इब्सन, दैट वी आर गोइंग टू सी. इतने अच्छी तरीके से उन्होंने ये स्टोरी रिप्रेजेंट किया है, ये हम यहाँ पर समझेंगे. सो इट्स अ फाइट अगेंस्ट द सोशल इविल, अगेंस्ट द you can see corruption, and of course standing and representing yourself as what is truth in the society. ये चैप्टर हमको, ये ड्रामा हमको सीख दे के जाता है. So without wasting time, let's see what we are going to do in this lecture today. Today we are going to start with firstly we are going to do the introduction of this play, जहाँ पे हम समझेंगे कि ये प्ले क्या है. तो इसका इंट्रोडक्शन हम जानेंगे. एन एनिमी ऑफ द पीपल रिटन बाय हेनरिक जोहान इब्सन. उसके बाद स्टूडेंट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अबाउट द राइटर. हु इज़ द राइटर, हु इज़ द ड्रामेटिस्ट, और उनका नाम है हेनरिक जोहान इब्सन. उसके बाद अबाउट द प्ले, प्ले में उन्होंने क्या लिखा है, दैट वी आर गोइंग टू सी. एंड देन वी आर गोइंग टू डू वन शॉर्ट समरी ऑफ दिस चैप्टर. ये चैप्टर का शॉर्ट समरी जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो हम शॉर्ट समरी देखेंगे. एंड लास्टली वी आर गोइंग टू डू थीम ऑफ दिस ड्रामा. ये इस ड्रामा का मेन थीम क्या है, दैट वी आर गोइंग टू सी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ड्रामा, एन एनिमी ऑफ द पीपल. An enemy of the people, if you would see, is a version of Ibsen himself. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हेनरिक इब्सन, normally if you would see, he had actually faced this problem of corruption, you can see social injustice in the society where he is staying in Norway. So he thought that he would write one play, and in this play you can see Henrik Ibsen's character is played by Dr. Stockman. So the playwright, जो हमारे playwright है, that is Ibsen, he tries to cover all the problems of the society. He uncovers the social disease of corruption. मालूम रहना चाहिए आप लोग को स्टूडेंट, हमारे सोसाइटी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है करप्शन. और इंडिया स्पेशली, नॉर्वे का तो नहीं मैं बोल सकती हूँ, पर इंडिया में अगर आप देखो तो करप्शन इज़ फील्ड इवन इन द एंडिंग ऑल्सो. स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आप देखोगे हर जगह पे करप्शन ही दिखता है आपको. तो ये चैप्टर जो है ऑफ कोर्स नॉर्वे का है, नॉर्वे के राइटर ने लिखा है. और नॉर्वे के में भी आप देखोगे कंट्री में you can see there is a problem of social injustice and corruption. तो उसको यहाँ पर represent किया है by our dramatist, and the dramatist name is Henrik Ibsen. You can see student, यहाँ पे एक physician है. physician मतलब होता है डॉक्टर, and the name of the doctor is Dr. Thomas Stockman. He uncovers the disease, water and social corruption. यहाँ पे वो एक छोटा मैटर लेके जाता है कि वाटर जो है वो कंटामिनेटेड, गंदा पानी आ रहा है, उसको इतना बड़ा करप्शन हो रहा है उसको जब पता चलता है, तो डॉक्टर थॉमस, यू कैन सी स्टॉकमैन, डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन ट्राइज टू एक्सपोज द लाइज. जितने लोग झूठ बोल रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करना, दिखाना चाह रहा है. Corruption which is happening, he wants to show it. So this is the drama where he exposes the lies and corruption happening in the society. It is actually faced by the Henrik Ibsen, but Henrik Ibsen had made one character, and the name of the character is Dr. Thomas, and through this he had insert all the voices on him. सो डॉक्टर स्टॉकमैन का हम यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सॉलिड डिटर्मिनेशन पावर देखेंगे.
हम ये भी देखेंगे कि थॉमस स्टॉकमैन in order to strengthen the law order, how much he is dedicated and he is replacing all the corrupt ideas. जितने भी लोग करप्शन के लिए आगे उसके सामने आ रहे हैं और वो कैसे उनसे फाइट कर रहा है एज अ अलोन पर्सन. लास्ट में उसका कोई साथ नहीं रहता है. But here is a man that is, you can see Dr. Thomas Stockman stand alone in between the society, standing alone among the people, representing that the person is doing the corruption. The high bureaucrats जो बड़े लोग हैं वो हमारे साथ corruption कर रहे हैं. ऑडियंस और people भी उन पे ट्रस्ट नहीं करती है. But this man is having a strong determination that I want to bring the justice in the society, and he had done. He sees that not only the water of the town आर पोल्यूटेड. लास्ट में डॉक्टर स्टॉकमैन को रियलाइज़ भी होता है और वो कहता भी है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे जो यू कैन सी एरिया का पानी ही नहीं पोल्यूट है, बल्कि बट स्टिल यू कैन सी दैट पीपल्स थॉट आर ऑल्सो करप्टेड. The town spokespersons, those who are the people of this society, their thought is also corrupted, that they are not able to recognize what is the reality of life and what is the falsehood of life. क्या चीज़ सही और क्या चीज़ गलत है कोई इंसान समझ नहीं पा रहा है. और ये समझाते डॉक्टर स्टॉकमैन इज़ प्रेजेंटिंग एंड रियलाइजिंग दैट पीपल इज़ ऑल्सो गिविंग more importance to corruption, to the lies, the social injustice in the society, rather than they are standing with me, that is justice in the society. तो ये हमारा introduction था. Now we will see who is the dramatist of this play, an enemy of the people, and also what is the play all about. So please see in this slide, you will understand properly that here the dramatist is none other than Henrik Johann Ibsen, who was born in the year 20th March 1828 and died in the year 23rd May 1906. Was a नॉर्वे एक कंट्री है और वहाँ के लोगों को बोलते हैं नॉर्वेगियन प्ले राइट. जैसे इंडिया के लोगों को हम वी कॉल इट एज इंडियंस. सेम वे ही वॉज नॉर्वेगियन प्ले राइट, मतलब ड्रामेटिस्ट है, थिएटर डायरेक्टर भी हैं. थिएटर में जो प्लेस होते हैं उनको डायरेक्ट भी करते हैं, एंड ऑफ कोर्स अ वेरी ग्रेट पोएट ऑफ दैट टाइम. एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्निज्म इन थिएटर, इन्होंने ही अगर आप देखो तो मॉडर्निज्म का जो मेन इम्पॉर्टेंस रहता है, स्ट्रॉन्ग बेस रहता है, उसको स्टैब्लिश किया. ही स्टैब्लिश्ड द मॉडर्निज्म इन द थिएटर. मतलब थिएटर में जो पुराने ओल्ड किंग क्वींस की जो स्टोरीज चल रही थी उसको हटा के इन मॉडर्निस्ट, इन रियल सोसाइटी, एज वी ऑल आर स्टेइंग इन अ सोसाइटी, what are the problems are there, what are the problems faced by the common people, middle class society. Their problems were put forth by Henrik Johann Ibsen in his theatre. मैंने जैसे बताया ही वॉज अ ग्रेट थिएटर ड्रामेटिस्ट और वो डायरेक्शन भी करते थे. तो वो अपने डायरेक्शन में मैक्सिमम स्टोरीज जो था, जो प्लॉट था, वो कॉमन ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड प्रेजेंट करते थे. That's why he was very famous among the common people, because common people life is shown on the stage. कॉमन पीपल के लाइफ की स्टोरी स्टेज पर प्रेजेंट होता था, तो कॉमन पीपल देखने आते थे और वो लोग जो भी थिंग्स स्टेज पे दिखाते थे उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाते थे. That's why Henrik Ibsen was very famous. Ibsen is often referred to as father of realism. Father of realism मतलब क्या? रियलिज्म मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ एक्सेप्टिंग द ट्रुथ सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी. सच्चाई को समझना, करप्शन है तो उसके लिए वॉइस आउट करना, प्रैक्टिस ऑफ समथिंग दैट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ. ये चीज़ इन्होंने रिप्रेजेंट किया इन हिज ड्रामा
ड्रामा के थ्रू उन्होंने स्टेज पे लोगों को कैरेक्टर्स को परफॉर्म कराया कि सोसाइटल प्रॉब्लम्स क्या है, सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स वर प्रेजेंटेड बाय Henrik Ibsen. That's why today we call him as father of realism. He was one of the most influential playwrights of his time. ये टाइमिंग में अगर आप देखोगे तो वो अपने टाइमिंग के सबसे ग्रेट राइटर थे, बिकॉज ही हैड रिटन सो मैनी प्लेस विच एक्चुअली टॉक्स अबाउट रियलिटी ऑफ लाइफ, ट्रूथ ऑफ द लाइफ एंड वॉट इज़ हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, दैट इट टॉक्स अबाउट. अभी तक जितने भी प्ले बन रहे थे वो सब किंग क्वींस के ऊपर थे या इमेजिनेशन के ऊपर था, पर इन्होंने रियलिटी ऑफ लाइफ जो कॉमन ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ में फेस कर रहा है ना प्रॉब्लम, उसको स्टेज पर दिखाया कैरेक्टर्स के थ्रू, एंड दैट्स व्हाई ही बिकेम वेरी पॉपुलर अमंग द ऑडियंसेस. इन 1869 ही बिगेन टू राइट प्रोज प्लेस. 1869 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और उसमें उन्होंने प्रोज प्लेस लिखना स्टार्ट किया. Some critics would say that at this point in his life, Ibsen abandoned poetry and took up realism. मैंने जैसे बताया, हेनरिक इब्सन वॉज अ ग्रेट पोएट और उन्होंने ये पोइट्री लिखने के बाद at this point what had happened, he is now ready to take up the realism, मतलब reality of life, what is happening in the society. पोइट्री मालूम ही है, ज़्यादातर आप देखोगे इट इज़ अबाउट इमेजिनेशन, पर पोएम में भी उन्होंने थोड़ा जब रियलिटी ऑफ लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल दिखाया तो उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं ये ड्रामा के थ्रू भी दिखा सकता हूँ. सो नाउ ही स्टार्टेड राइटिंग द ड्रामा स्पेशली फॉर द नन अदर देन पीपल ऑफ कॉमन सिटीजन्स, दैट इज़ मिडिल क्लास सोसाइटी. In 1877, he began what he became a series of 5 plays in which he examines the moral faults of modern society. आप 1877 में देखोगे उन्होंने शुरुआत की लिखने की और उन्होंने एक के बाद एक वन आफ्टर अनदर ही हैड रिटन लाइक 5 प्लेस. कम से कम वो लोग उन्होंने हेनरिक इब्सन ने 5 प्लेस लिखा और वो किसके ऊपर बेस्ड था, डू यू नो, इट इज़ बेस्ड ऑन द मोरल फॉल्ट्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. हमारे सोसाइटी के जो प्रॉब्लम है, सोसाइटल प्रॉब्लम है, मोरल्स जो हम गलत सोच में हैं, ये जो मॉडर्न सोसाइटी है और कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं, उनके सोच क्या है, इन सब को उन्होंने ये 5 प्लेस में लिखा और वो बहुत फेमस हो गए. इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस द प्लेस वर, अगर आप देखोगे ऑर्डर वाइज कि उन्होंने कितने 5 प्लेस वन आफ्टर अनदर लिखे विच टॉक्स अबाउट द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, तो वो 5 प्लेस अगर आप देखो तो यहाँ पर एज फॉलोज है. द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, सेकेंडली डॉल्स हाउस, thirdly ghost, fourthly an enemy of the people which we are going to study today, and the wild duck. ये 5 प्लेस में उन्होंने सोसाइटी के फॉल्ट्स, लोगों के थॉट्स को रिप्रेजेंट किया, जो गलत मोरल सोशल प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में, दैट इट इज़ बीन प्रेजेंटेड इन दिस 5 ड्रामास ऑफ हेनरिक इब्सन. इज़ दैट क्लियर? सो याद रखना, द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, अ डॉल्स हाउस, गोस्ट, an enemy of the people, and the wild duck, which are very famous, which talks about the societal problems, injustice, corruption or wrong moral values that the society still carries, that it talks about in his plays. Next slide if you would see, हेनरिक इब्सन like all the plays, ये जो प्ले है अब इस पे फोकस करते हैं, दैट इज़ अबाउट द प्ले वी विल सी, एन एनिमी ऑफ द पीपल वॉज ओरिजिनली रिटन इन नॉर्वेगियन. नॉर्वेगियन मतलब नॉर्वे की लैंग्वेज में ये लिखा गया है, एंड इज़ फुल ऑफ ट्रांसलेटेबल वर्ड प्ले. कुछ वर्ड्स तो इतने डिफ़िकल्ट थे जिनको आप ट्रांसलेट ही नहीं कर सकते, यू कांट ट्रांसलेट दोज वर्ड्स. जैसे अगर हिंदी में अगर मैंने कोई प्ले लिखा या मराठी में मैंने लिखा
और लिखने के बाद अब उसको मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो ऑफकोर्स मराठी के कुछ वर्ड्स या हिंदी के कुछ वर्ड्स ऐसे रहेंगे स्टूडेंट कि मैं ट्रांसलेट ही नहीं कर सकती, दैट इज़ अनट्रांसलेटेबल. सो इवन ही हैड फेस द सेम थिंग, हेनरिक इब्सन, जिन्होंने नॉर्वेगियन लैंग्वेज में इसको पहले लिखा, और जब उसको ट्रांसलेट करने गए इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश. Specifically, a number of the character titles exist only in Norwegian bureaucracy. आप इसमें किस चीज़ को राइटर इब्सन चेंज नहीं कर पाए, तो वो याद रखना, वो है कैरेक्टर के नेम्स. इसके बाद हम कैरेक्टर्स का नेम भी लेने वाले हैं. तो कैरेक्टर का नेम्स अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट, दैट इज़ टोटली डिराइव्ड फ्रॉम नॉर्वेगियन लैंग्वेज. नॉर्वेगियन लैंग्वेज से डायरेक्ट लिया गया है, इसलिए जो कैरेक्टर्स के नेम है ना वो नहीं बदल पाया हमारे राइटर हेनरिक इब्सन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही ट्राइज टू ट्रांसलेट द होल प्ले इन इंग्लिश, बट द कैरेक्टर्स नेम इट रिमेन्स सेम, एग्जिस्ट सेम. एंड स्पेशली आप देखोगे नॉर्वेगियन ब्यूरोक्रेट्स के जो नाम, ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो हाई ऑफिसर्स जो थे, उनके जो नाम अगर आप देखोगे तब समझोगे कि उनके एज इट इज़ नेम्स ही उन्होंने रखे हैं, उनके नेम्स को चेंज नहीं किया है. नेक्स्ट पैराग्राफ, इफ यू सी, द होल्डर ऑफ द ट्रुथ, द मैन हु कैन सी द इसेंस ऑफ द सिचुएशन इज बाउंड टू बी द अनपॉपुलर even if the masses catch up with his ideas in due course. और ये पर्सन है none other than the hero of this play, that is Dr. Thomas Stockman. Yes student, he was the holder of the truth. सच्चाई को उन्होंने लास्ट तक पकड़ के रखे हुए थे. वॉट एवर द इसेंस ऑफ सिचुएशन, कैसा भी सिचुएशन रहने दो, उनको अपना घर तक, you know, he have to leave everything, his job, his workplace, even the people had thrown the pebbles on this doctor जो कि इतना रिस्पेक्टेड पर्सन है, पर लोगों को इतना आप देखोगे भड़काया गया बाय दिस ब्यूरोक्रेट्स. बड़े ऑफिसर्स ने लोगों को भड़काया कि ये मैन जो है वो एनिमी ऑफ द पीपल है, तो लोगों ने इसके ऊपर इनफैक्ट पेबल्स, पत्थर भी मारे. इतना सब होने के बाद भी दिस मैन had never changed his ideas to help the society. Yes, mass audience इसके enemy हो चुके थे, but he had not changed his views. That is why Dr. Stockman finally sums up. लास्ट में डॉक्टर स्टॉकमैन ने एक बात कही और वो लाइन बहुत ही फेमस है, करेक्टली एप्ट है in this situation. And what he had said, the strongest man in the world is he who stands alone. पूरे विश्व में सबसे स्ट्रॉन्ग डिटरमिन्ड इंसान वही है जो स्ट्रांगली खड़ा रहता है अपने लिए. The person who stands alone for himself can win any of the battles in his life. मतलब कि अगर आप सोच लो कि मुझे क्या करना है इन माई लाइफ, यू कैन कम फॉरवर्ड इन योर लाइफ. तुमने एक बार सोच लिया कि ये चीज़ मुझे लाइफ में करनी ही है. ओके, एज अ स्टूडेंट ऑल्सो यू थिंक दैट आई हैव टू बिकम वॉट आई फेल्ट, जो मुझे बनना है वो तो मैं बन के रहूँगी. देर इज़ नो स्टोन दैट इज़ अनटर्न मी. डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड दैट द डे विल कम दैट यू वुड बी स्ट्रांगली स्टैंडिंग देयर, और तब जाके आप अपने ड्रीम्स, अपने नीड्स फुलफ़िल कर सकते हो. इफ़ यू आर स्ट्रांगली स्टैंडिंग एंड थिंकिंग स्ट्रांगली टू फुलफ़िल योर ड्रीम्स, योर मोटिव्स, योर एक्सपेक्टेशंस टू बी फुलफिल्ड. इज़ दैट क्लियर? सो दिस इज़ द शॉर्ट इन you can see about the writer and the chapter we had understood. Now please see the page number 176 जहाँ पे ड्रामेटिस पर्सोनी लिखा हुआ है, वो ज़रा हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ड्रामेटिस पर्सोनी मतलब होता है कैरेक्टर स्केच ऑफ द प्ले, विच कैरेक्टर हैड प्लेड व्हाट टाइप ऑफ रोल इन दिस नॉवल. तो कैरेक्टर स्केच यहाँ पर दिया है, एक एक कैरेक्टर्स के नेम दिए हैं और उनका रोल क्या है इस ड्रामा में वो हम देखेंगे. फर्स्टली डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन.
This Dr. Thomas Stockman is a medical officer who is the hero of this play of the municipal bar, place where he had established his spa. उनका एक खुद का एक स्पा भी था. एक दिन वर्क करते करते वहाँ पे उनको दिखाई पड़ता है कि जो पानी स्पा में उनके खुद के क्लिनिक में आ रहा है वो कंटामिनेटेड है. एंड दस इज थॉट टू वॉइस आउट, टू स्पीक आउट व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ. उनको लगा कि अब यही टाइम है दैट आई कैन स्टैंड एंड आई विल रिप्रेजेंट दैट व्हाट्स हैपनिंग इन द सोसाइटी. नेक्स्ट इज डॉक्टर स्टॉकमैन's wife, that is Mrs. Catherine Stockman, who is doctor's wife. Thirdly, Petra, who is a very strong personality, I would say, daughter of Thomas Stockman and Catherine Stockman की बेटी है वो. और वो बाय प्रोफेशन शी वॉज अ टीचर, वो एक टीचर है. नेक्स्ट कैरेक्टर इज एजलिफ एंड मॉर्टन. ये दोनों डॉक्टर स्टॉकमैन और मिसेस स्टॉकमैन के दो सन हैं. उनका एज कुछ एजलिफ का लाइक 13 ईयर्स है एंड मॉर्टन का 10 ईयर्स है. सो दिस इज द होल फैमिली ऑफ Dr. Thomas Stockman. Is that clear? Next, move on to the Peter Stockman, who is actually, you can see, सच्ची में अगर आप देखो तो पूरे प्रॉब्लम्स को किसने क्रिएट किया है? इट इज़ नन अदर देन पीटर स्टॉकमैन. पीटर स्टॉकमैन ने पूरा प्रॉब्लम क्रिएट किया है. सो द डॉक्टर्स एल्डर ब्रदर, वो जो है वो एक्चुअली डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन का बड़ा भाई है. और वो कौन से पोस्ट पे है? मेयर है, मेयर ऑफ द टाउन एंड चीफ कांस्टेबल, चेयरमैन ऑफ द बाथ्स कमिटी एक्सेट्रा. इतना ही नहीं, वो चेयरमैन भी है ऑफ द बाथ कमिटी. मतलब वो जो वाटर जहाँ से यू कैन सी सप्लाई होता है वहाँ का वो हेड है. टाउन का मेयर है, चीफ कांस्टेबल है. इट मीन्स ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेट, बहुत बड़ा एक ब्यूरोक्रेट है और उसके अंडर बहुत कुछ काम हो रहा है, यू कैन सी. नेक्स्ट कैरेक्टर इज मॉर्टन किल, हु इज़ अ टैनर, दैट इज़ मिसेस स्टॉकमैन्स एडॉप्टिव फादर. आप देखोगे मिसेस स्टॉकमैन के फादर का रोल यहाँ पर किसने प्ले किया है? मॉर्टन किल ने. ओके, वो भी मिसेस स्टॉकमैन को बहुत हेल्प करते हैं. Next character which is very important is Hofstad, who is the editor of People's Messenger. People Messenger एक आप देखोगे एडिटोरियल ऑफिस है. और एडिटोरियल मतलब होता है, जैसे आप देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, लोकमत टाइम्स है. ठीक है, तो ये जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर एजेंसीज़ हैं, इनका अपना एक ऑफिस रहता है. और वो ऑफिस का नाम है पीपल्स मैसेंजर. जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में आप जाओगे, कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जाके आप अपना प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट करते हो, तो नेक्स्ट डे आप देखोगे आपका प्रॉब्लम न्यूज़पेपर में प्रिंट होके आता है. तो सेम वे यहाँ पर एक न्यूज़पेपर है और उसका नाम है पीपल्स मैसेंजर, जिसके ऑफिस का एडिटर, हेड एडिटर है हॉफस्टैड. वही पीपल्स मैसेंजर जो कि एक ऑफिस है जो कि न्यूज़पेपर प्रिंट करता है, उस ऑफिस का सब एडिटर है बिलिंग. बिलिंग इज़ द कैरेक्टर जो कि सब एडिटर है, जो प्रिंटिंग का काम और जो न्यूज़ है उसको एडिट करने का काम करता है. कैप्टन हॉर्स्टर, हु इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द पीपल्स मैसेंजर ऑफिस. नेक्स्ट इज एक्सलेक्शन. इफ़ यू वुड सी, कौन है? हमारे प्रिंटर है, जो डॉक्यूमेंट्स आप दोगे उसको प्रिंट करते हैं, फिर उसको एडिट किया जाता है. और ये सब हो रहा है अंडर पीपल्स मैसेंजर. जैसे इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, लोकमत टाइम्स है, तो ये सारे न्यूज़पेपर एजेंसीज़ का ना ऑफिस होता है. वहाँ पे जाके आप अपना प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट करोगे तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. वो लोग वो प्रॉब्लम मैटर न्यूज़पेपर में लिखते हैं और वो न्यूज़पेपर सबको मिलता है और सबको प्रॉब्लम एरिया का पता चलता है. समझ में आया? तो वैसे ही नॉर्वे में पीपल्स मैसेंजर करके एक न्यूज़पेपर है
जिसके अंडर दीज पीपल वर वर्किंग, दैट इज हॉस्टैट, बिलिंग, Captain Hoster and Selection. Is that clear? And last, must remember, is the people. Men of various conditions and occupations, a few women, and a troop of schoolboys, the audience at a public meeting. जब भी you can see डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन को गलत साबित करने के लिए आप देखोगे बहुत सारे पीपल आते हैं और वो लोगों को ज़बरदस्ती आप देखोगे कलेक्ट किया जाता है और रॉन्ग थिंग्स बताया जाता है अगेंस्ट डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन, सो दैट द पीपल शुड बी वायलेंट, पीपल भड़क जाए और पीपल थॉमस स्टॉकमैन के अगेंस्ट चले जाए, और यही होता है एट द एंड ऑल्सो। तो यहाँ पे कुछ पीपल भी आते हैं, मेन, वीमेन, ट्रूप ऑफ स्कूल बॉयज़, गर्ल्स एंड ऑल, they come to protest against Dr. Stockman and of course in the public meeting. So this is the dramatis personae, that is the characters played by the main characters of this play. Now moving towards the short summary of this drama, An Enemy of the People. So let's see the summary of this chapter. It's a short summary which I had presented. However, when we will do chapter, we will more properly understand. So summary, we all know this famous play An Enemy of the People is written by Henrik Ibsen. Henrik Ibsen, if you would see, tries to present this story. It's a real life story, we can say, and he actually, we can see through Dr. Thomas Stockman, through him we can see the whole story. So Henrik Ibsen actually wants to represent what's the social injustice happens in the society, and he created one character, and the name of the character is Dr. Thomas Stockman. Through him he tries to show that what he had faced in his life, in true sense, he had presented. So you can see, student, An Enemy of the People by Henrik Ibsen is considered as one of the finest and the most popular play. बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिफरेंट है, मिडिल क्लास सोसाइटी के रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको शो करता है। इन द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले, जब स्टार्ट होता है स्टोरी प्ले, आप देखोगे डॉक्टर स्टॉकमैन अपीयर्स ऑन द स्टेज, इट सीम्स टू बी वरीड। आप स्टार्टिंग में आप देख सकते हो, जब स्टोरी स्टार्ट होती है टेंस रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। कुछ तो बात है कि दैट द मेन कैरेक्टर इज वरीड एंड इन टेंशन। सो व्हाट्स द वरी, व्हाट्स द रीज़न फॉर वरी, वरी का रीज़न क्या है, टेंशन का रीज़न क्या है, एंग्जाइटी प्रॉब्लम क्यों हो रहा है उनको? बिकॉज अ ह्यूज बाथिंग, जो मेन वाटर सप्लाई जहाँ से होता है, कॉम्प्लेक्स हैज़ बीन बिल्ड इन द टाउन, जो एक बड़ा सा बाथिंग कॉम्प्लेक्स, बाथिंग वाटर सप्लाई जहाँ से होता है पूरे एरिया का, टाउन का, इट वॉज कंटामिनेटेड एंड इट इज़ बिलीव दैट द बाथिंग कॉम्प्लेक्स इज क्रूशियल टू द टाउन्स इकोनॉमी। और मालूम है, आप सब यू कैन सी बिल्डिंग में रहते हो, पानी एक दिन भी नहीं आता है, देखो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, या पानी अगर आ रहा है बट वो केमिकल वाला है तो इट मे कॉज डिफ़िकल्ट टू ऑल द पीपल। और वो अगर केमिकल का पानी अगर हम पीते हैं फॉर एग्जांपल, तो इट इज़ गोइंग टू इल हेल्थ और इट्स डिफ़िकल्ट फॉर ऑल द पीपल, डिफरेंट प्रॉब्लम्स वुड हैपन, डिजीजेस वुड हैपन एंड वी आर गोइंग टू बी सिक, हमारी तबीयत खराब हो सकती है। तो एज अ डॉक्टर ही थॉट दैट आई शुड स्टैंड that because the water is contaminated, गंदा पानी आ रहा है, तो उसके लिए मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, और उन्होंने ये किया। Dr. Stockman has just come to know that the drainage system of the bath is highly polluted, और जब उन्होंने इसके बारे में बात करना स्टार्ट किया तब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये जो पूरा एरिया का जो पानी आ रहा है, सप्लाई हो रहा है, फुल ड्रेनेज सिस्टम ही कंटामिनेटेड है, गंदा पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स यू स्टे देयर, यू आर गिविंग द मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द हाउस, तो वो जो पैसा आप देते हो वो हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट में यूज होता है, बट sad to say that money is not properly used in the particular you can see area of Dr. Stockman। जो डॉक्टर स्टॉकमैन जहाँ रहते हैं वहाँ पे ये मनी प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है, और यू कैन सी उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और पानी क्लियर भी नहीं आ रहा है, मीन्स द वाटर इज कंटामिनेटेड, water is not good and it is going to cause the trouble to the people, common people. Okay, so Dr. Stockman, as a doctor, he thought I should alert
some others members of the society, कम्युनिटी के कुछ लोगों को भी मुझे अब अलर्ट करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, एक दिन ही वेंट टू द पीपल्स मैसेंजर दैट आई हैड टोल्ड इन द इंट्रोडक्शन। पीपल्स मैसेंजर आप देखोगे एक न्यूज़पेपर है, जैसे इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और फॉर एग्जांपल लोकमत टाइम्स है, तो वैसे पीपल्स मैसेंजर में आप जाते हैं के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे हॉस्टाइड एंड एस्लेक्शन हु इज़ द प्रिंटर एंड सब एडिटर उनको प्रॉब्लम बताते हैं, इन्फॉर्म्स देम अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कंटामिनेटेड वाटर ऑन द हेल्थ ऑफ द पीपल। लोगों को वो दोनों को बताते हैं कि मुझे एक आर्टिकल लिखने का है, वेयर इन माई एरिया द वाटर सप्लाई इज वर्स्ट एंड द वाटर विच इज़ कमिंग इन आवर हाउसेज इट इज़ कंटामिनेटेड एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर एनी ऑफ द पीपल, इट मे कॉज इल हेल्थ टू द पीपल। ये मैसेज उन्होंने एडिटर को लिखवाते हैं कि नेक्स्ट टुमारो के पेपर में प्लीज़ राइट दिस एज अ न्यूज़। ही रिसीव्स ह्यूज सपोर्ट, और जब नेक्स्ट डे ये लोग प्रिंट भी कर देते हैं, तो जब प्रिंट हो जाता है स्टूडेंट, तो पीपल हैड रेड, एक बार न्यूज़पेपर में कोई थिंग्स प्रिंट हो गया तो पीपल विल रीड। सो ही रिसीव्स ह्यूज सपोर्ट एंड पीपल थैंक हिम फॉर मेकिंग हिज डिस्कवरी। They thank them for saving the town. Dr. Stockman's brother is the town's mayor. ये सब उनको पता चल जाता है। Next day when it was been printed, all the people came to know that this water that we are using is contaminated, and here is the doctor who stood up for the cause, जो सबके लिए खड़े हुए और पेपर में न्यूज़ डालवाया कि ये जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं it is dirty water and if you are using this water it is going to cause ill health. बट आपको पता रहना चाहिए स्टूडेंट, डॉक्टर स्टॉकमैन्स ब्रदर इज द टाउन्स मेयर। मतलब अब जो डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन है उनके जो एक ब्रदर है, वो जो ब्रदर है वो टाउन के मेयर है। मतलब टाउन का ही मेयर पानी के सप्लाई को पूरा देखता है। यस, तो वो जो टाउन का जो मेयर है वो डॉक्टर स्टॉकमैन का ही ब्रदर है। हिज ब्रदर टेल्स, जब उसके ब्रदर को पता चलता है कि मेरा भाई थॉमस स्टॉकमैन मेरे अगेंस्ट वॉइस उठा रहा है और मेरे अगेंस्ट लोगों को भड़का रहा है कि वाटर इज कंटामिनेटेड, पीटर स्टॉकमैन जो कि उसका ब्रदर है ऑफ यू कैन सी नन अदर देन डॉक्टर स्टॉकमैन का जो ब्रदर है पीटर स्टॉकमैन, टेल्स हिम टू retract his statement for a lot of money will be needed to repair the drainage system of the town. वो तुरंत जाके थॉमस स्टॉकमैन को बोलता है उसके घर पे कि बिकॉज मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ तो मैं आपको अभी से अलर्ट कर रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में वॉट एवर द स्टेटमेंट दैट यू हैड गिवन प्लीज चेंज द स्टेटमेंट एंड फॉर चेंजिंग द स्टेटमेंट हाउ मच मनी यू रिक्वायर आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू। तुम स्टेटमेंट चेंज करो न्यूज़पेपर का कि ये मुझे गलत पता चला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसके लिए जितना पैसा चाहिए आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू एंड से टू द पीपल दैट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ आवर लोकेलिटी इज परफेक्ट. Secondly, the town mayor is not convinced by the discovery which Dr. Stockman has made. A heated argument takes place between the brothers. और दूसरी बात आपको बता दूं, जो टाउन का मेयर है दैट इज पीटर स्टॉकमैन, कन्विंस भी नहीं होता है डॉक्टर स्टॉकमैन के बात से। डॉक्टर स्टॉकमैन उसको समझाता है कि देखो ये करेक्ट टाइम है कि तुम मेयर हो, और अगर इफ पीपल इज़ नॉट विथ यू मीन्स पीपल तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज यू आर गिविंग देम द कंटामिनेटेड वाटर, तो इसके लिए आर्ग्यू मत करो, बी कन्विंस हो जाओ और पानी लोगों को अच्छा दो, गिव देम द गुड वाटर। वाई यू आर स्टिक विथ योर स्टेटमेंट दैट द वाटर इज़ गुड। जब पानी खराब आ रहा है, इफ़ इट इज़ कंटामिनेटेड, इफ़ इट इज़ नॉट गुड, केमिकल वाला पानी है, तो क्यों नहीं तुम रियलाइज़ कर रहे हो और लोगों के सामने अपना मिस्टेक अंडरस्टैंड कर रहे हो। वाई यू आर एक्चुअली सेइंग दैट आई शुड से रॉन्ग। डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन उसको समझाता है एज ए ब्रदर कि समझ जाओ कि ये पानी तुम खराब दे रहे हो, तो अपना मिस्टेक मानो, गिल्ट अपना जो मिस्टेक है अंडरस्टैंड इट, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ पीपल कि दिस वॉज योर मिस्टेक, एंड दस फाइनली कम्स आउट विथ अ गुड वे कि लोगों को साफ पानी दो। बट घर पे ही आप देखोगे देयर वॉज अ हीटेड आर्गुमेंट टेक्स प्लेस बिटवीन द टू ब्रदर्स। दो ब्रदर्स के बीच में एक बहुत भयंकर झगड़ा हो जाता है। हॉस्टेड
and Aslaksen. We all know both are Hosted is the sub-editor and Aslaksen is the printer of the newspaper People's Messenger और also present there. वो लोग भी घर पे उनके आते हैं और वो लोग भी ये सारा आर्गुमेंट देखते हैं. डॉक्टर स्टॉकमैन believes that Hostad newspaper will support him. पर लास्ट तक डॉक्टर स्टॉकमैन को ऐसा लगता है कि हॉस्टेड का जो न्यूज़पेपर है लोग पढ़ के ज़रूर मेरे बात को सपोर्ट करेंगे और पीटर स्टॉकमैन को नहीं लाइक करेंगे. On the other hand, Dr. Stockman's brother, the town mayor, tries to convince Hostad and Aslaksen that they should not support Dr. Stockman. दूसरी तरफ आप देखोगे जो पीटर स्टॉकमैन है, डॉक्टर थॉमस का ब्रदर, जो कि टाउन का मेयर है, बाहर आके हॉस्टेड को और एस्लैक्शन को प्रॉपरली बोलता है दैट नॉट टू सपोर्ट डॉक्टर स्टॉकमैन. कुछ भी हो जाए तुमको डॉक्टर स्टॉकमैन को सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि मस्ट रिमेंबर डॉक्टर पीटर स्टॉकमैन इज़ द मेयर ऑफ द टाउन. वो ब्यूरोक्रेट है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, तो वो लोगों को बोलता है, स्पेशली न्यूज़पेपर या किसी को भी, कि तुम अपना स्टेटमेंट चेंज करो. जितना भी डॉक्टर स्टॉकमैन बोल रहा है उसको ध्यान मत दो और ये स्टेटमेंट चेंज करके न्यूज़पेपर में डालो कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, and don't support Dr. Stockman. Finally, to make his voice reach up to the people, to the town, the doctor holds a town meeting where he wants to deliver a lecture on the baths to inform the people that there is danger to their health. जब देखता है डॉक्टर स्टॉकमैन that even the press media is not supporting to him, जब डॉक्टर स्टॉकमैन को रियलाइज होता है that the in newspaper whatever the information I had written, it is not been understood by the newspaper agency. वो लोग अच्छे से उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आर्टिकल्स को गलत बता देते हैं. अब बेचारे डॉक्टर स्टॉकमैन के पास कुछ नहीं रह जाता है, तो वो अब कम्युनिटी में आके सोसाइटी को कलेक्ट करके ही स्टार्टेड मेकिंग अ मीटिंग, टाउन मीटिंग लेता है और उसमें लोगों को ही सेज टू द पीपल अबाउट द बाथ, दैट इज द वाटर विच इज कमिंग इन देयर हाउसेस आर प्योरली, इफ यू वुड सी, इम्प्योर. पूरी तरीके से वो गंदा पानी है एंड इट इज गोइंग टू कॉज द डेंजर टू द पीपल्स लाइफ एंड द हेल्थ. Aslaksen and the mayor tried their best to stop Dr. Stockman from speaking in front of the public. पर जब यहाँ पे भी आप देखोगे Aslaksen जो प्रिंटर है वो भी पूरी तरफ हो जाता है पीटर स्टॉकमैन के, और पीटर स्टॉकमैन खुद, दोनों ट्राई करते हैं कि डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन पब्लिक में आके ना बोले, क्योंकि पब्लिक में उसका रियलिटी पता चल जाएगा. द डॉक्टर डज नॉट स्टॉप एंड ही बिगिंस टू स्पीक, पर डॉक्टर रुकता नहीं है, पब्लिक के सामने बोलता जाता है. ही गो ऑन टेलिंग द रियलिटी दैट द पीटर स्टॉकमैन इज एक्चुअली creating lots of problem by giving the people contaminated water. He speaks vehemently against the foundation of the town and speaks against the tyranny of the majority. वो सब प्रॉब्लम बताता है कि ये सब करने में सब लोगों ने एक साथ हो गए, मतलब all the corrupted people had come together and as a truth person which I had faced, the water is contaminated. मैंने चेक भी किया इन द लैब दैट इट इज़ केमिकल वाटर, इट इज़ गोइंग टू कॉज इल हेल्थ, डोंट ड्रिंक दैट वाटर. ये सब लोगों को बताता भी है एंड टोल्ड टू द मेयर, दैट इज़ अपने भाई को भी बताता है ये स्टोरी कि मैं जब भाई के पास गया, दैट इज़ आई वेंट टू माई ब्रदर दैट इज़ द मेयर, ही ऑल्सो रिजेक्टेड द स्टेटमेंट दैट द वाटर विच वी आर यूजिंग इज़ नॉट कंटामिनेटेड. तो वो बताता है कि कैसे मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ पानी साफ होने के और कोई मुझे सपोर्ट भी नहीं कर रहा है. इवन मेयर ऑफ द टाउन is also not supporting me. But do you know, students, something wrong happened, that audiences do not trust to the Dr. Stockman speaking, and audiences became angry for Dr. Stockman. The following morning, they attacked the doctor's house and his home in vandalized. They thrown the pebbles or stones at the doctor and their houses. The doctor and his daughter are badly fired by everyone. All the people were badly criticizing about doctor and as well as the daughter of doctor, that is Petra. The town mayor insinuates the people by accusing the doctor that the doctor has a scheme to inherit more of Morton Keel's money. आप यहाँ पे देखोगे मेयर अब उल्टा इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है डॉक्टर थॉमस के ऊपर, दैट दिस डॉक्टर मस्ट रिमेंबर इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू टेक
the inherit money of Morton Kills. Morton Kills, if you would see, is the father of Dr. Stockman's wife, Catherine स्टॉकमैन। कैथरीन के जो डैडी हैं मॉर्टन किल, उनके मनी को किसी तरह हड़पना चाहता है थॉमस स्टॉकमैन। ये गलत स्टोरी मेयर जो है दैट इज पीटर स्टॉकमैन लोगों को प्रेजेंट करता है कि ये खुद इतना करप्टेड है, लालची इंसान है, और वो लोगों को बता रहा है कि पानी गंदा है। मतलब वो खुद करप्टेड बट स्टिल creating the problem in the society. The doctor refused. The doctor says, I had not taken any of the money. All the allegations, he is adamant and he is not ready to take this words back. And he says that I had not taken any of the money. I had not taken my wife's father's money, and this all allegation is just wrong. The doctor resolves to defy the authority and he has no intention of leaving the town. तो डॉक्टर तब सबको पता चल जाता है कि ये डॉक्टर ही खुद गलत आदमी है, लोगों अपने ही घर वालों से पैसा हड़पने का ट्राई कर रहा है। तो सबको समझ जाता है कि डॉक्टर को सपोर्ट नहीं करना है, डॉक्टर स्टॉकमैन को सपोर्ट अब नहीं करने का है। तो ये सब अब अगेंस्ट होने लगते हैं अगेंस्ट द थॉमस स्टॉकमैन। बट डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन वो टाइम पे भी स्ट्रांगली स्टैंड होके बोलता है दैट कुछ भी हो जाए आई एम नॉट गोइंग टू लीव द टाउन बिकॉज द पीपल नाउ स्टार्टेड सेइंग दिस मैन इज द रॉन्ग। ये गलत इंफॉर्मेशन ले आया है कि पानी कंटामिनेटेड है एंड दिस पर्सन इज नॉट इक्विवेलेंट टू स्टे इन द टाउन। इस इंसान को टाउन में रहने लायक ही नहीं है। He has decided to stay in town. According to the doctor, the strongest man is the one who stands alone in spite of a very strong opposition. Dr. Stockman resolves to fight alone against the injustice of the thing. Last में सारे people उसका oppose करते हैं. All the city people, all the town people started opposing to the doctor, and you can see even at last doctor also decided that I am like alone in this full struggle where I am standing for the truth. But the doctor is very determined. डॉक्टर बहुत डिटर्मिंड है। डॉक्टर ने दिमाग बना लिया है कि मैं कुछ भी हो जाए आई एम नॉट गोइंग टू लीव द टाउन, आई एम गोइंग टू फाइट दैट show to the people that the water that they are using is contaminated and it caused the ill health to the people. And at last the doctor says in the play that the strongest man is the one who stands alone. Strongest man if you would see is the person who stands alone, जो अकेले खड़ा रह के लड़ाई करता है in spite of the strong opposition. उसके against पीटर स्टॉकमैन जो strong opposition उसके अगेंस्ट है, गलत एलिगेशन, गलत इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा रहा है कि अपने वाइफ के फादर का पैसा लेके रख रहा है एंड ऑल। ये सबको फाइट करते हुए द डॉक्टर डिसाइडेड दैट कुछ भी हो जाए आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस टाउन। हाउएवर द पीपल आर डिमांडिंग दैट डॉक्टर स्टॉकमैन शुड लीव दिस टाउन, ही इज नॉट शुड स्टैंड सर्वाइव ओवर हियर, बट डॉक्टर स्टॉकमैन thought that I am going to resolve this fight alone and I would going to stand against the injustice that is happening in our society. So in this way we can understand that the doctor was very strong to deliver the reality, the truth in the society. Same way as a human being also we should stand and understand the reality that we should be supportive towards the truth, not to the lies. Next is the theme, which is the last topic of today, and the theme if you would see are variant, like it talks about hypocrisy of the society, or for example it talks about the problems of the society. The central characters if you would see wins the heart of the people when he alone stands for the truth. Okay, it represents the social evils. तो ये सारा हमारा जो theme है वो हम next lecture में करते हैं. Okay, so we will continue in the next lecture the theme, and then we will do plot, synopsis and whole chapter. So by this we come to the end of this lecture. Read the chapter very carefully. I think मेरा summary समझ के you can do it now and read it very carefully. We will do in the next lecture the remaining things which are there in this chapter which are very important. Understand the storyline which I had given today and enjoy learning. This is Garima Miss signing off. Stay home, stay safe. Thank you.